हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज का हमारा जो वीडियो, दिस विल बी पार्ट 3 फॉर द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। बिफोर दिस आई हैव uploaded 2 videos, part 1 for alkanes and part 2 video for alkenes. There is one part left for part this one alkenes, that is your chemical properties, है ना। chemical properties मैंने last video में discuss नहीं किया था. So in this video, before starting with the alkynes part, alkynes start करने के पहले I'll go with the this chemical properties of alkenes and then I'll go for the alkynes part. So all together I'll make in this video only the alkenes ka part, chemical properties, plus part 3 alkynes. Okay, so let us have a look again. As always I say, when you are preparing for your exams, this thing is very important to be very handy with you, so that it will help you to just conclude out that what you have done and what is still to be left to be done. Okay, so like last class में हमने ये पढ़ चुका था methods of preparation. Till here we have done. So today's in this class we are basically going to discuss about this alkynes and aromatic hydrocarbons, है ना। But before that हम ये देख लेंगे केमिकल रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, विच आई सेड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज देयर, ठीक है. सिमिलरली देन हियर फॉर योर एल्काइंस दिस केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स योर दिस एरोमेटिसिटी पार्ट, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिसिटी इज देयर, देन दिस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस, ऑल दिस मीन्स एक्सेप्ट आप देख सकते हो उसमें कि carcinogenicity and toxicity. Excluding this topic, this whole topic is important for every point of view, whether it is your competitive exams or from your like term exam wise. Okay, so let us start with the today's class, and keep the NCERT books with you. Do prepare the notes, ठीक है. Don't just sit and listen. Notes simultaneously also you make along with when you are seeing the video. Okay, fine. So let us start with the chemical properties of alkenes. ठीक है, हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. ठीक है ना. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली व्हाट डू वी सी इन दिस. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब हम एल्कीन्स को उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब हम उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं, वेदर या फिर उसको हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं, वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स. सो कुछ तो आपके बहुत ही ईजी है, सम आर वेरी सिंपल विच यू कैन रिमेंबर. द मेन पार्ट इन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज विच विल बी सीइंग इज योर Marconics of rule, है ना, and anti-Marconics of rule, MR and AMR. These are the two important, where in most of the competitive exams also, or your term exam or your board exams, because this is also there in for class 12. So this is the most important topic of this particular chemical properties of alkenes. So we will discuss that topic more importantly, but first start up with the simple reactions for the alkenes part. Okay, so first you can see that under the chemical properties of alkenes, the first part is addition of dihydrogen. Okay, whenever to an alkene, addition of, you can write addition of hydrogen. Okay, H2. So ये जैसे आपका कोई सा भी simple alkene है, ठीक है, दिस वी हैव बिन रीडिंग सिंस द वेरी बिगनिंग. अगर हम इसमें H2 का एडिशन करते हैं तो क्या होगा, दिस वी ऑलरेडी सीन, रिडक्शन पार्ट होगा जिसमें से आपका एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये एल्केन्स बन जाएगा. ठीक है. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सिंपल टू द रिडक्शन प्रोसेस वेयर इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट बोल लो, ठीक है, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम के प्रेजेंस में आपका प्रोसेस होता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक. अब इसमें हम आते हैं जो नया विच इज़ न्यू टू यू, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वन, इवन इन एल्कीन्स पार्ट ऑल्सो. ओके, सॉरी एल्केन्स पार्ट ऑल्सो. एंड इसमें जब हमने प्रिपरेटरी मेथड देखा था एल्कीन्स का, देयर ऑल्सो वी हैव डिस्कस दिस प्रोसेस. सो दिस इज समथिंग वेरी इजी. वी विल गो विद द सेकेंड प्रोसेस विच इज़ द न्यू प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट अस सी दैट. अगर हम इसमें देखते हैं, दूसरा है एडिशन ऑफ हेलोजेंस. ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन. हेलोजन क्या होता है आपको, क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स, विच कुड बी फ्लोरीन. फ्लोरीन जनरली हम नहीं लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके, सो एडिशन ऑफ हेलोजेंस में क्या होता है, जब भी आप कोई सा एक एल्कीन लेंगे, ठीक है, एंड इसमें आप किसका एडिशन कर रहे हैं, हेलोजन का. सो हेलोजन देख लीजिए, आप ले लीजिए Br2. अगर आप इसका एडिशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, विसिनल हैलाइड्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं,
विसिनल हैलाइड्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था विसिनल और जेमिनल क्या होता है। इसमें क्या होगा आपका, अगेन यहाँ से ये एक डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, सो 1 बॉन्ड विल ब्रेक एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रोमीन आपका यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका दूसरा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट वी आर सीइंग हियर कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें से आपका क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड, दिस 1 डबल बॉन्ड इट विल ब्रेक, एज द रिजल्ट एक ब्रोमीन एटम इस कार्बन एटम से जुड़ेगा, दूसरा ब्रोमीन एटम इस कार्बन एटम से जुड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये जो आपको मिल रहा है, जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम, ये कार्बन एटम 1 है एंड दिस इज कार्बन एटम 2, तो जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम में आपके हेलोजन्स अटैच होते हैं तो इसको हम बोलते हैं विसिनल, ठीक है। और क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, हेलोजन जुड़ रहा है, सो विल कॉल इट एज अ विसिनल हैलाइड्स। क्लियर है, सिंपल। सेकेंड आपका केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। नाउ वी विल स्विच टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि जब आपका एल्कीन्स में थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी कि जब भी आपका कोई एल्कीन है, टू दैट व्हेन देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे HBr का, ठीक है, HBr, hydrogen H, halide is bromine. So addition of HBr, this is the most important part of the chapter and most important topic for class 12th as well कि addition of hydrogen halide, HBr का addition alkenes में कैसे होगा, ठीक है। इसमें सिंपल से आपको याद रखना है कि जब भी ये प्रोसेस, ठीक है, एल्कीन है, ये जो आपका एल्कीन है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। व्हाट इज दिस एल्कीन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड यहाँ भी एक कार्बन एटम है, यहाँ भी एक कार्बन एटम है, बोथ द साइड्स क्या हो रहे हैं आपके, बोथ द साइड्स 2 कार्बन एटम है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन में जैसे ये हुआ आपका, ठीक है, CH2 जैसे CH3 सॉरी CH, ठीक है, फिर ये आपका डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अगर ये आप एल्कीन लेते हो तो ये भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्री है, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब भी आपके डबल बॉन्ड के दोनों साइड होते हैं, सो वी कॉल दैट एल्कीन स्पेसिफिकली टू बी एज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो जब भी एक आपका ऐसा सिमेट्रिकल एल्कीन होता है और इसमें अगर आप HBr का एडिशन करते हो, सपोज इसमें आपने HBr का एडिशन किया, ठीक है, तो इसमें एक रूल एप्लीकेबल होता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल, MR रूल, ठीक है, MR रूल, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, ठीक है। इसका लेट मी जस्ट राइट मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज सेइंग, स्टेटमेंट आई एम नॉट राइटिंग बट आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें ये बोलता है कि जब भी एक हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, जब भी एक हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है एल्कीन पे, तो ये जो हेलोजन पार्ट होता है उसका, ठीक है, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है, हमको पता है कि H प्लस होता है और Br क्या होता है, माइनस होता है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है जो है वो किस में आपका अटैच होता है, द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम सॉरी। अगर सपोज आप इस सिमेट्रिकल एल्कीन को कंसिडर करते हो, ठीक है, लेट मी टेक इन अ फ्रेश पेज, ओके, यहाँ पे हॉच पॉच हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, या लेट अस टेक इन दिस पेज। सपोज ये आपका एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, इसमें जब आप HBr का एडिशन करोगे तो यहाँ पे आप चाहे Br को इस वाले कार्बन एटम में ऐड करें या इस वाले कार्बन एटम में ऐड करें, इट विल बी द बोथ विल बी द सेम केस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन एटम के साथ चले जाएगा और Br का एडिशन क्या होगा, एक वाले कार्बन एटम के साथ। दिस इज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वेदर यू अटैच ब्रोमीन टू दिस or whether you attach bromine to this, both are the same cases. Generally Markovnik's of rule जो होता है वो कहाँ पे, where it is applicable, where there is a presence of unsymmetrical alkene, ठीक है, जहाँ पर भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, जैसे प्रीवियस केस, लेट अस टेक दिस प्रीवियस केस, जैसे हमने यहाँ देखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक में आपका क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन, और एक में आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका इसका, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH, Br,
CH3। ये दोनों केसेस किस में, ये सिमेट्रिकल एल्कीन। सो फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन्स वी डोंट हैव टू गो फॉर द मार्कोनिक्स ऑफ रूल। हम मार्कोनिक्स ऑफ रूल किस में जाएंगे, एक ऐसे एल्कीन में जो कि अनसिमेट्रिकल है। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन में ये क्या एल्कीन हो गया आपका, प्रोपीन। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स है, नंबरिंग विल डू फ्रॉम हियर 1 2 एंड यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपके 3 कार्बन एटम्स है। अब आप इसमें क्या देख सकते हैं, इन दिस 3 कार्बन एटम्स आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे है। ठीक है, और इस तरफ आपका क्या है, 1 कार्बन एटम है, और इस तरफ आपके क्या है, 2 कार्बन एटम है। सो दिस टाइप ऑफ एल्कीन इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 कार्बन एटम्स है। ठीक है, डबल बॉन्ड, विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड वी आर सेइंग। सो जब भी आपका इस टाइप का कंपाउंड होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, इसमें जब आप HBr का एडिशन करते हैं, इसमें जब आप HBr का एडिशन करते हैं, सो देयर इज अ रूल विच कम्स इन टू एग्जिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल, MR रूल। ठीक है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल ये बोलता है कि जब आप एक हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो जो इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये आपका H प्लस पॉजिटिव पार्ट है एंड Br माइनस इज द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से अटैच होगा विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या लिखना है आपको, नेगेटिव पार्ट will attach to that carbon atom which has less number of hydrogen atoms, ठीक है। अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आप कैसे देखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये वाला देखो कार्बन एटम, इसमें 2 हाइड्रोजन है, और ये वाला कार्बन एटम देखो सिर्फ इसमें 1 हाइड्रोजन एटम है। सो इसमें आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आप लिखोगे CH3, ठीक है, फिर CH। ब्रोमीन जो होगा किस वाले कार्बन एटम से अटैच होगा, द वन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो ये जो मिडिल वाला आपका जो कार्बन एटम है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, 1 का हाइड्रोजन है, सो Br आप यहाँ पे लगाओगे। डबल बॉन्ड में से वही ये 1 टूटेगा, 1 Br यहाँ पे ऐड हो रहा है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा CH3। ओके, सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज दिस मेजर प्रोडक्ट, this is your addition of HBr, hydrogen halide, to an unsymmetrical alkene. What phenomena or principle is applicable over here, Marconics of rule, ठीक है। अब इसके एक opposite एक होता है anti Marconics of rule, ठीक है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर नॉट गोइंग फॉर mechanisms आर नॉट मोस्टली आस्क्ड। बेसिकली योर रिएक्शन विल बी गिवन एंड you will be asked to write the products of a certain alkenes, okay, in presence of HBr or in absence of HBr. So आपको ये याद रखना है कि जब भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन को हम ट्रीट कराएंगे अगर HBr के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम 2 चीज़ें अभी हमने देखी, लेट मी समराइज इट ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर आप एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, ठीक है, अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, उसमें अगर आप HBr का एडिशन कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एक तरफ डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एक साइड आपका H ऐड हो जाएगा और एक साइड आपका Br ऐड हो जाएगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर कोई सा आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप HBr का एडिशन कराते हैं तो उसमें क्या होगा, Br विल अटैच टू, Br आपका कहाँ पे अटैच होगा, लेस हाइड्रोजन एटम, ऐसे कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास विच हैव लेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड हाइड्रोजन कौन सा, जिसके पास ज़्यादा कार्बन एटम है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, जब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम, जो द थर्ड केस विच वी आर गोइंग टू सी नाउ फर्दर, जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ रिएक्ट करते इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, दिस वी आर गोइंग टू सी नाउ। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ था, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम HBr के साथ ऐड कराते हैं तो ब्रोमीन जो होता है वो अटैच होता है टू, विल अटैच विथ होगा, ठीक है, यहाँ पे विच नहीं है, ये
ब्रोमीन विल अटैच विथ लेस हाइड्रोजन एटम, जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम है उस कार्बन एटम से ये अटैच होगा, ठीक है। और ये रूल क्या कहलाता है, मार्कोनिक्सॉफ रूल, MR रूल। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन फिर से HBr के साथ रिएक्ट करता है, बट वहां पे हम पेरोक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट देन व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव रेड फॉर मार्कोनिक्सॉफ रूल। मार्कोनिक्सॉफ रूल में हमने जो देखा था उसका जस्ट ऑपोजिट होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल, AMR रूल, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल, ठीक है। AMR रूल, जिसको कि एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल, यहाँ पे आप इफ यू सी इट इन बुक यू विल गेट इट ऑल्सो एज खराश इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द नेम इज ऑन बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एंड फिर आपका एक होता है पेरोक्साइड इफेक्ट भी, इसको वी कैन कॉल इट बाय 3 नेम्स, इधर एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल, इधर खराश इफेक्ट और इधर पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। इसमें आपको सिंपल सा वैसे ही आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, ठीक है। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप HBr का एडिशन करते हैं एंड एरो के ऊपर आपका अगर पेरोक्साइड लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डज दिस रूल स्टेट्स, व्हाट डज दिस एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल स्टेट, इट स्टेट्स दैट कि Br, फिर से वही Br बोल लो, या नेगेटिव पार्ट, this is the positive part and this is your negative part, okay. So the negative part will attach to that carbon atom, which have more hydrogen atoms, which have more hydrogen with it. So अगर आप, एंड दिस इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो हम बात करें इट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे फिर से वही 2 और यहाँ पे 1 है। सो दिस इज एंटी मार्कोनिक्स, पेरोक्साइड के इफेक्ट में आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें ये आपका ये जो Br है इट विल अटैच विथ दिस कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ना, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैव मोर हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, फिर से यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड टूटेगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और दूसरे तरफ आपका ये CH2Br, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट होगा किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और जब भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और HBr का एडिशन होगा दैट विल फॉलो योर एंटी मार्कोनिक्सॉफ रूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इसमें हम देखो there is one question given in your in-text, if you'll see it in the NCERT, just try to understand that how we have solved this question, है ना। अगर आप इसमें देखोगे तो hex 1 ene, ठीक है, hex 1 ene, hex मतलब आपके 6 कार्बन एटम्स हो गए, 1, ओके, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन 2 ways, ओके। HBr एडिशन इज टेकिंग प्लेस प्लस HBr, ठीक है। अब ये 2 तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है इस रिएक्शन को। फर्स्ट इज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक, सो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड इन एब्सेंस ऑफ peroxide. So सबसे पहले you need to, it is very important to identify which rule are we going to apply, whether it is anti-Markovnikov rule or whether it is Markovnikov rule. So just now we discussed कि whenever you will find the presence of peroxide के presence में you will also every time you will follow anti-Markovnikov rule. So left hand side में जो आप product बनाएंगे that is with respect to anti-Markovnikov rule, and right side here this where you will be making it will be इन एब्सेंस मतलब नॉर्मली आपका मार्कोनिक्सॉफ रूल लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट गो विद द मार्कोनिक्सॉफ रूल। मार्कोनिक्सॉफ रूल क्या बताता है, मार्कोनिक्सॉफ रूल ये बताता है कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जिस कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन होगा, लेस हाइड्रोजन होगा, उसमें आपका क्या होगा, Br अटैच होगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 हो जाएगा, ये CH, Br किससे अटैच होगा, इस वाले कार्बन में अटैच होगा अगर आप मार्कोनिक्सॉफ रूल लगाते हैं तो, ठीक है। बाकी आप पूरा प्रोडक्ट वैसे लिख लीजिए ये, ठीक, क्लियर है। एंड अगर आप
this will be CH3. Just check out the valency, whenever you are drawing the structures, make sure that you check the valencies, है ना. ये CH3 होगा, ठीक है. यहाँ पर भी ये CH3. तो ये आपका क्या हो गया, 2 ब्रोमोहेक्सेन. सिमिलरली जैसे अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड देखेंगे, सो इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल आप अप्लाई करोगे. और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में क्या देखेंगे हम कि जिसके पास विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका क्या होगा, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल. सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन इस वाले कार्बन एटम से अटैच होगा. क्यों, क्योंकि इट इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, फिर ये आपका CH2, फिर CH2, 1 2 3 4 देन 5 एंड 6. क्लियर है. सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या है, 2 ब्रोमोहेक्सेन, ठीक है. और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोहेक्सेन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, टू रिमेंबर दिस. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट लेट अस सी. इसमें ये आपका हो गया एडिशन ऑफ HBr विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. इन प्रेजेंस ऑफ peroxide एंड इन एब्सेंस ऑफ peroxide रिजल्टिंग इन टू अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्कोनिक्स ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल. फाइन. नाउ वन मोर important topic which is over here is, like you can see, oxidation is there, then addition of water is also there, and ozonolysis. These three are the reactions of alkenes. Till now अभी भी हम alkenes ही discuss कर रहे हैं. After this we'll discuss alkynes and then we'll switch to the aromaticity. Okay, so let us see. अगर आप addition of oxidation की बात करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में अगर हम बात करें तो एल्कीन्स जो होते हैं, ठीक है, ये एल्कीन्स जो होंगे, हियर ऑल्सो यू विल सी दैट depending upon symmetrical and unsymmetrical alkene you will get the different products. Suppose alkenes when they are treated with water, oxygen and dilute KMNO4. Okay, so in this presence what you will get the vicinal alcohols. Vicinal alcohols means suppose हमने ये alkene लिया CH2 double bond CH2, ठीक है. विसिनल अल्कोहल मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पे आपके क्या जुड़ा हुआ है, आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. सो दिस इज एल्कीन्स. जब आप इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसमें होगा तो क्या होगा, ये एक डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा OH एंड OH. बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल, ठीक है. ये आपका क्या कहलाएगा, ग्लाइकॉल. सो दिस इज योर वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एल्कीन इज बीइंग ट्रीटेड विथ योर डाइल्यूट KMNO4, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं. वी कॉल दिस एज अ बेयर्स रिएजेंट, ठीक है. सो बेयर्स रिएजेंट के साथ बेयर्स रिएजेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स फॉर टेस्ट फॉर सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन के लिए, कि वेदर इट इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड और अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएजेंट विच नीड टू बी रिमेंबर्ड. सो H2O, ऑक्सीजन, डाइल्यूट KMNO4 के प्रेजेंस में एल्कीन्स विल गिव यू द vicinal alcohols or you can say as a glycol. Okay, if decolorization takes place, so based on the decolorization factor we do it as a test for saturation and unsaturation. अब इसी alkene को suppose we take this dilute KMNO4 and we just go with the yes हाँ, so if this will take it in presence of KMNO4 and acidic KMNO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्कीन्स लिया एंड वी हैव जस्ट चेंज द मीडियम इन स्पाइट ऑफ टेकिंग डाइल्यूट KMNO4. अगर हमने एसिडिक KMNO4 लिया, सो डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का एल्कीन है, वेदर इफ इट इज़ अ टर्मिनल एल्कीन, ठीक है, अगर वो टर्मिनल एल्कीन है सो योर प्रोडक्ट विल बी अ कीटोन. ओके, योर प्रोडक्ट विल बी अ कीटोन. एंड अगर ये आपका टर्मिनल एल्कीन नहीं है देन योर प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. इफ टर्मिनल एल्कीन इज देयर देन यू विल गेट द कीटोन. ओके, एंड सिंपली इफ इट इज अ नॉर्मल एल्कीन तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा.
ओके। टर्मिनल एल्कीन मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन टर्मिनल कॉर्नर वाले कार्बन एटम पे होती है, दैट इज रिफर्ड टू बी एज अ टर्मिनल एल्कीन। सपोज फॉर example of terminal alkene is CH3 whole twice, suppose C double bond CH2। तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल एल्कीन है, ये फर्स्ट सेकेंड या टर्मिनल पोजीशन पे। और नॉर्मल एल्कीन अगर आप देखोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 अगर आप देखते हो, जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, एंड इन दिस यू विल गेट द कीटोन। इज इट क्लियर? Fine. So these are the oxidation, these are the things which you need to remember. Okay, this is all the skeleton which I am discussing. Based on this skeleton reaction, you can just try any of the reactions which you need to make on the basis of, ठीक है। This chain could be of any length. So most important is the thing to remember is what are these reagents. Dilute KMnO4 होगा तो आपको विसिनल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। डाइल्यूट KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स फॉर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन टेस्ट। सेकेंड हमने क्या देखा कि अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग डाइल्यूट KMnO4, अगर हम एसिडिक KMnO4 लेते हैं तो अगर वो टर्मिनल एल्कीन होगा, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड की पोजिशनिंग आपकी क्या होगी, कॉर्नर पे होगी, सो यू विल गेट अ कीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट। बट अगर ये आपका नॉर्मल एल्कीन होगा तो in that case you will get the byproduct to be as a carboxylic acid, and we are talking all this in terms of oxidation. Fine. Last part of the chemical properties of alkenes is your ozonolysis. ठीक है, ozonolysis, just a minute, let us see ozonolysis. Yes, ozonolysis, ठीक है। ozonolysis means यहाँ पे आपका होता है addition of ओजोन। O3 क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ ओजोन, ठीक है। अब एडिशन ऑफ ओजोन एल्कीन्स पे कैसे होगा, सपोज कोई सा भी एक एल्कीन ले लेते हम, लेट अस टेक अ सिंपलेस्ट एल्कीन की हमने ले लिया ये प्रोपीन, ठीक है। तो जब हम इसको O3 से रिएक्ट कराते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप सिंपल सा बाई प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, इस डबल बॉन्ड के अराउंड एक O आपका यहाँ पे ऐड होगा और एक O आपका यहाँ पे ऐड होगा। दिस इज ओनली द सिंपल थिंग, वन ऑक्सीजन इट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CHO, ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया, प्लस यहाँ पे CH2O हो जाएगा, बट यू नीड टू रीअरेंज इट एंड राइट HCHO, ये आपका हो गया। सपोज हम एक दूसरा एल्कीन लेते हैं, लेट अस टेक वन अनदर एल्कीन, जैसे हमने ले लिया एक एल्कीन CH3, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस O3। तो मैंने क्या बताया, हाउ यू विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स, बिकॉज मोस्टली द प्रोडक्ट्स आर ओनली आस्क्ड इन रिएक्शंस। सो सपोज इन दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन, इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा और यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। सो वन प्रोडक्ट विल बी योर CH3 CH2 CH2O, ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, फाइन। एंड अनदर प्रोडक्ट विल बी योर दिस वन CH2O, बट इसको आपको रीअरेंज करके कैसे लिखना है, HCHO, ठीक है, इसको भी आप रीअरेंज करके लिख सकते हो। तो बेसिकली यू गेट द एल्डिहाइड्स, दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड, दिस विल बी योर प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल एंड मीथेनल, ठीक है। सो ओजोनोलिसिस में जब भी एडिशन ऑफ O3 में इन योर NCERT बुक्स यू विल सी सम स्टेप्स, इंटरमीडिएट भी आपका एक बनता है, and after intermediate you find the presence of formation of this final products. So intermediate आप अगर नहीं भी बनाते, if products are asked, so you can go with this products, okay, clear? So this completes your एक polymerization reaction that is very easy, okay, so that I'm not discussing. Basically the major reactions where you are facing trouble, that topics I'm taking for your preparation or for your term exams and all this, okay. So ozonolysis, so this is all about the alkenes. Now we'll come to the last part of the hydrocarbons, basically your alkynes, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, that is your alkynes, ठीक है। alkynes क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें you have the presence of ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इफ यू सी द जनरल फॉर्मूला ऑफ देम, सो इट इज CnH2n-2, ठीक है। इसका अगर सिंपलेस्ट आप देखते हो एल्काइन, सो दैट इज C2H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन, ओके,
इथाइन इज अ सिंपलेस्ट अल्काइन, लेट मी राइट जस्ट अ मिनट, यस, इथाइन जो है आपका सिंपलेस्ट अल्काइन है। इसमें आप कैसे लिखोगे, सी, टू कार्बन एटम्स आर हियर, है ना, देन ट्रिपल बॉन्ड, वन हाइड्रोजन हियर एंड वन हाइड्रोजन हियर। Okay, now in this alkynes we know that for naming of the alkynes it is very easy, that word root, जो भी आपका word root होगा, plus your suffix. What is the suffix used for this alkynes? That is your -ine. Okay, this is your suffix, primary suffix. Secondary suffix अगर आपका कोई functional group attach होता है. Nomenclature is not much into this chapter, so I am not focusing on that. Basically we will be discussing the chemical reactions associated with it. ठीक है, इतना समझ में आ गया। एल्काइंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला आपका ये हो गया, सिंपलेस्ट अल्काइन जो हो गया आपका C2H2 हो गया। फाइन, नाउ प्रिपरेटरी मेथड अगर हम देखें, ठीक है, प्रिपरेटरी मेथड, अच्छा इसमें 3 बॉन्ड्स में से आपके क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ दिस 3 bonds 1 will be your sigma and the other 2 will be your pi bonds. Okay, one will be sigma and the other 2 will be your pi bonds. And if we talk about the hybridization, ठीक है, hybridization में आपका क्या होता है, इसमें sp hybridization होता है। कार्बन एटम इज, this carbon atom is sp hybridized, and because of sp hybridization your this percentage of s character 50% s character होता है इसमें, ठीक है, and 50% आपका क्या होता है, p character होता है। क्लियर है, दिस इज सम वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ethyne molecule which is the simplest alkyne. Preparatory method if you will see, so there are very just 2 simple preparatory methods in this. Okay, बहुत simple easy सा preparatory method है। First one preparatory method if you will see, so the first preparatory method is basically from, अगर आप first preparatory method देखोगे तो ये first preparatory method is from calcium carbide, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड दैट इज CaC2 प्लस, ये आपको जब इसको वाटर के साथ ट्रीट कराते हो, सो व्हाट हैपेंस, ये जो कैल्शियम है, इट इफ यू विल सी द H2O इट हैज़ 1 H एंड OH पार्ट, है ना, H प्लस और आपका OH माइनस पार्ट हो गया। कैल्शियम में आपका कंपैरेटिवली ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। सो देखो, एवरी टाइम वी नो दैट पॉजिटिव पार्ट इट कंबाइंस विद द नेगेटिव पार्ट। सो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH है, सो वन ऑफ योर बाई प्रोडक्ट इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ का एक कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे ये 2 OH लिख के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट, दिस C2 एंड 2H2, सो दिस बिकम्स योर C2H, तो ये आपका बन गया एल्काइन, ठीक है, बेसिकली योर इथाइन। सो फर्स्ट प्रोसेस इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, when it reacts with the water it results into formation of calcium hydroxide, one of the byproduct, and another is your alkyne part. Am I clear? Okay, next preparatory method if you'll see, only 2 preparatory methods are there. Okay, next preparatory method is from vicinal dihalides, ठीक है, विसिनल डाइहलाइड्स। अभी हमने देखा था कि विसिनल डाइहलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल डाइहलाइड्स मतलब जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम्स में आपके क्या होते हैं, हेलोजन्स जुड़े हुए होते हैं, सो दैट इज योर विसिनल डाइहलाइड। अब ये विसिनल डाइहलाइड है, ठीक है, अब इस विसिनल डाइहलाइड से अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज रिटन इन दिस वे सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बीइंग एलिमिनेटेड। अगर इस विसिनल डाइहलाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो इसमें आपका क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट हैपन्स, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एक आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और एक आपका क्या होता है, ब्रोमीन एलिमिनेट होता है। हाइड्रो रिफर्स टू हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हेलोजन X, ठीक है। सो जब भी आप एक विसिनल डाइहलाइड को आप ट्रीट कराते हो एल्कोहलिक KOH से, this is basically taking place in presence of your alcoholic KOH, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो alcoholic KOH के प्रेजेंस में होता है। तो आपके क्या क्या एलिमिनेट होता है, एक आपका एलिमिनेट होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलाइड एक आपका एलिमिनेट होता है जब इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, इसमें से इफ यू विल सी 1 हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड एंड अनदर ब्रोमीन इज एलिमिनेटेड, ठीक है। यहाँ से एक आपका ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन सबसे पहले आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनता है। अगर आप इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट नहीं भी देखेंगे तो सिंपली यू विल सी कि आपका यहाँ से ये हाइड्रोजन
ये ब्रोमीन, ओके, एंड दिस वन is removed. Two molecules are removed with a process of an intermediate being formed. अगर आप intermediate नहीं बना सकते हैं directly, if you see this KOH in presence of alcohol, then you can simply make that this bromine, two bromines and two hydrogens, they will be eliminated, and as a result you will get a alkyne. Okay, and what will be the alkyne over here? This I have made it as a propyne. ठीक है, ये मैंने propyne कर दिया. This you can just write it, yeah, like this. Okay, this you will get as propyne. In your books NCERT you will find it as a example of an ethyne. So dehydrohalogenation will take, and as a result you will get a alkyne part. So these are the two simple preparatory methods, and this further process, it is carried out in presence of sodium sodamide. Okay, this is sodium and this is your amide part, so we called it as a sodium sodamide or either sodium amide. Okay, so ये process आपका होता है for the preparatory method of the vicinal dihalides. Okay, just one important thing is acidic character of alkynes. Okay, ये आपका हो गया preparatory method of alkynes. Fine. In after preparatory method you have this chemical properties of the alkynes. Then we'll start off with the aromaticity. ठीक है, अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होता है एल्काइंस का, दैट इज इट्स एसिडिक नेचर, स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस. जो एल्काइंस होते हैं आपके, ये इसको हम बोलते हैं कि दे आर स्लाइटली एसिडिक. क्यों? बिकॉज जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड इन द वेरी बिगनिंग कि जब भी ये जो आपका एल्काइंस होता है, ठीक है, इन एल्काइंस इफ यू विल सी, सो हियर आई सेड दैट कार्बन एटम इज योर sp हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड होने के वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम है इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है. 50% आपका क्या होता है, s कैरेक्टर होता है, बिकॉज ऑफ विच what happens, the electronegativity of carbon atom is comparatively higher with respect to hydrogen atom. So because of which it tries to attract or means pull this electron towards itself, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. एंड वी नो दैट वेन एवर एनी सब्सटेंस इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, वी कंसिडर इट टू बी स्लाइटली एज अ एसिडिक कैरेक्टर, राइट. सो इन बिकॉज ऑफ दिस थिंग the alkynes they are considered to exhibit the acidic character. ठीक है, यहाँ पे देखो in presence of this acidic character there is mentioned that whenever you will treat any alkyne, okay, just see an example, better you will understand this. If you will see this alkyne, just a minute, okay, अगर आप किसी alkyne को यहाँ पे treat करते हैं सोडियम सोडामाइड के साथ, जस्ट नाउ द प्रीवियस एग्जांपल विच वी आर सेइंग, ओके, सोडियम सोडामाइड के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, ये इजीली इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा. सो दिस हाइड्रोजन इट कंबाइंस विद दिस NH2 रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ NH3. ठीक है, और आपका क्या बाई प्रोडक्ट बन जाता है, ये वाला जो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA. ठीक है, द सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड as a result you get one byproduct, and this is specifically in presence of what taking place, sodium sodamide के presence में यहाँ पे क्या होता है, formation of salt is taking place, and formation of salt, why it is taking place, on the basis of acidic character of alkyne. समझ में आई बात, क्या बोला मैंने कि अल्काइंस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन sp हाइब्रिडाइज होने के वजह से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी हाई होती है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, जिसके वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर देगा तो इट कैन ईजिली डोनेट दैट हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम. ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर एग्जिबिट करता है. अब इसी एल्काइन को व्हेन वी ट्रीट इट विथ सोडियम सोडामाइड, ओके, देन वी नो दैट ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट. सो ये जो पॉजिटिव पार्ट है आपका किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, NH2 के साथ, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ NH3, एंड एज अ रिजल्ट द सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, इसको हम बोलेंगे सोडियम प्रोपेनाइड. ओके, सोडियम प्रोपेनाइड, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा. दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्काइंस. ठीक है, एडिशन रिएक्शन आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन रिपीटेटिव. एडिशन में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है आपके, ट्रिपल बॉन्ड में पहले एडिशन में एक बॉन्ड टूटेगा, आपका एल्कीन बनेगा.
है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर जब हम कोई एल्काइन ले रहे हैं, ठीक है, एल्काइन मतलब आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। जब एडिशन होगा तो बेसिकली वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन टूटेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एल्कीन मिलेगा, ठीक है। एल्कीन में जब आप फर्दर फिर H2 का एडिशन करेंगे, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंपली द एडिशन रिएक्शन, नॉट मच। एंड कैटलिस्ट भी आप लोगों को याद होने चाहिए, अभी तक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होगा, क्लियर है। एडिशन रिएक्शन हो गया। हेलोजेंस की अगर आप बात करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन इफ यू विल टेक केयर ऑफ, सो एज अ रिजल्ट हियर यू विल गेट द विसिनल हैलाइड्स आपको मिलेंगे। विसिनल मतलब दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम में आपको एडिशन ऑफ हेलोजन होगा, फाइन। एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज एल्स इज लेफ्ट, अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की अगर बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात करेंगे तो दो केसेस हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा अगर कोई सा सिमेट्रिकल एल्काइन होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ आपका एक तरफ H और एक तरफ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। और अगर वो कोई सा अनसिमेट्रिकल एल्काइन हुआ, ठीक है, अगर वो कोई सा अनसिमेट्रिकल अल्काइन हुआ, सो विथ रेस्पेक्ट टू दैट अगेन यू विल गो विद द मार्कोनिक्सॉफ रूल, जिसमें कि लेस हाइड्रोजन एटम जिसके पास होगा उसमें आपका क्या अटैच होगा, हेलोजन पार्ट अटैच होगा, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स है उसमें आपका हाइड्रोजन अटैच होगा उस कार्बन एटम पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्काइंस पार्ट। नाउ वन मोर वीडियो आई विल बी मेकिंग इट फॉर द एरोमेटिसिटी, ठीक है, वन separate video I'll make for the aromaticity. After this, so I'll also provide the link in this. So this is all about the alkenes and alkynes. Fine. I hope you understand my topic, which has been explained, will be easily understandable by you. Okay, so do let me know about the other parts also which you require the videos for. Okay, so thank you everyone.